ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਗੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 1705 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਟਵਈਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਹੀ ਖਾਤੇ। ਉਹ ਵੇਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਪੱਟ ਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1670, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ 1675 ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 1670 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 1670 ਵਿੱਚ ਪੁੰਛ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
इन्हां दे पिता का नाम रामदेव है, लेकिन मां का नाम इतिहासकारां की पकड़ च नहीं आया, क्योंकि साडा अपना इतिहासकार नहीं सीगा। हाँ, एक सिख कौम की बड़ी वड्डी एक त्रासदी है, सिख कौम ने इतिहास नूं अपने पिंडे ते हंडाया जरूर है, पिंडे ते हंडाया, बहुत इतिहास सिख कौम ने हंडाया, पर सिख कौम की एक त्रासदी रही है, पिंडे ते सिर्फ हंडा सकी है, लेकिन अपनी कलम दे नाल अपने इतिहास नूं लिख नहीं सकी। ये एक और इत्थों तक पुरातन नहीं, हुण भी साडा इहो ही हाल है, हुण भी साडी कौम दे विच लिखारी नहीं हैगी है, इतिहासकार बहुत घट हैगी है, जिहड़े हुण दे इतिहास नूं जो कुछ हो रहा उन्होंने सही तरीके दे नाल कलमबंद किया जाए। ये उदों भी सीगी मुश्किल ते हुण भी साडी ये मुश्किल है। उन्हां दी माता का नाम पकड़ विच नहीं आ रहा, उन्हां दी उम्र 14 साल हुई है, राजपूत परिवार दे विच हन, मां बाप की कोशिश है, राजपूत जिहड़े हन वो खेती का काम करते हैं ते उन्हां दा एक शौक है, वो शौक है शिकार करन दा, ते उन्होंने अपने बच्चे नूं बचपन दे विच धनुष ते आपां तीर कमान कह लीए, वैसे धनुष शब्द भी साडा हिंदी का शब्द है। एक गल याद आ गई, साडे बच्चे जो स्कूले पढ़न जाते असी भी उसे लाइन च असी पढ़ते रहे हैं ऊड़ा ऊड़ा, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ऊड़े तो की पढ़ते सीगे, ऊठ पंजाबी का शब्द नहीं है, बोता शब्द है पंजाबी का, ये तुहानू समझना पेगा। इसे तरह धद्दे तो धनुष नहीं है, साडा जिहड़ा शब्द है तीर कमान है, इसे तरह मम्मे तो मुर्गा नहीं है, साडा शब्द कुक्कड़ है, ये सानू मुर्गा पढ़ाया गया। मेरे कहने तो भाव कि बहुत देर तो गल चलती आ रही है, किसी तरीके दे नाल पंजाबी मां बोली नूं गुरमुखी नूं इनू इहदे विच रला कीता जावे, इनू खत्म कीता जावे। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, तीर कमान उन्हां दी चलाण दा उन्हां दा शौक है, शिकार करना उन्हां दा शौक है, जंगल दे विच शिकार करन जांदे हन। अज उन्हां दी उम्र 1684 दे विच 14 साल दी हुई है, वो तीर कमान लैके गए हन, अज शिकार करन गए हन, लेकिन परमात्मा की ऐसी मर्जी है वो आप शिकार हो गए। उन्हां दे सामने एक हिरनी लगी है, जिहड़ी मादा है, वो हिरनी जदों लंघी है उन्होंने उन्होंने सेध के जदों उहदे वल उन्होंने तीर चलाया, वो हिरनी तां डिग गई। जदों हिरनी डिग गई अपना छुरा लैके उहदा ढिड पाड़न वास्ते गए, जदों ढिड पाड़न वास्ते गए ते की देखिया उहदे अंदर दो बच्चे सहकदे हुए, दो बच्चे सहकदे हुए है। वो सहकदे बच्चियां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर हले नाम नहीं आया, नाम आया उन्हां दा बचपन दा लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास उन्हां दा बचपन दा नाम है। 14 साल 15 साल तक लक्ष्मण दास नाम दे नाल वो जिए हन, उन्होंने जिंदगी बतीत की। जदों देखिया दो बच्चे सहकदे पे हन ते उन्हां दे हथों तीर कमान जिहड़ा सी ना वो छुट गया। उन्होंने दूसरे हाथ में फड़िया होया जिहड़ा खंजर सीगा, वो खंजर जिहड़ा सी धरती ते डिग गया। ऐसा मन दे विच बैराग आया कि उस समय तो उन्होंने चुप रहना शुरू कर दिया। घरदियां ने पूछया पुत की होया, दसिया आ होया। कहंदे पुत्र जिहड़ा शिकारी है, जिहड़ा शिकार करता है, उन्हें ते पुत मौत नूं देखना ही है। इहदे विच तेरी वड्डी गल हो गई कि तेरे सामने एक जिहड़ी हिरनी है, परंतु कहण तो भाव उन्होंने उस गल नूं इतना दिल ते ला लिया, आत्मा ते ला लिया, हिरदे ते ला लिया, वो एक बैराग दे विच चले। समा अपनी चाल दे नाल चलदा गया। उन्हां दे रजौरी दे इलाके दे विच एक दिन बैरागियां दा समागम सीगा। वो बैरागियां दा जिहड़ा मुखी सीगा ਉਹਦਾ नाम सी जानकी दास। वो जानकी दास आया, जिस तरह अपने पिंडां दे विच कह लईए कीर्तन दरबार हुंदे आ, इस तरह उन्हां दा एक दरबार सीगा। वो दरबार दे विच उन्हें अपने विचार प्रगट कीते। जदों विचार प्रगट कीते ते वो विचार लक्ष्मण दास ने सुने। जदों लक्ष्मण दास ने सुने ते वो उहदे वल प्रभावित हो गया। जाके उस जानकी दास नूं कहंदा, जानकी दास जी मैं चाहुंदा हां
कि ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਫਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ। ਉਸ ਲੱਖੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਥੰਮਣ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਥੰਮਣ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ Google ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਰਾਮ ਜੀ ਥੰਮਣ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਥੰਮਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਥੰਮਣ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤੂਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੁਲਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਮਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਰਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਆਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੇ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੇ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਆਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੇ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੇ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਿਧੌਰਾ। ਜਦੋਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਾੜੀ ਗਏ, ਰਣ ਤੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਿਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਹੁਣ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ।
जे सारा कुछ समर्पित करना तो गुरु अमरदास जी कहते हैं, मैं दसदा किनू समर्पित कर, तन मन धन सब सौंप गुर को। हुक्म मनिया इथों मिलना खैर। राम जी दास के नाल भी चलदियां चलदियां समा अपनी चाल नाल चलदा गया। 1691 का समा आया। 1691 का समा आया। माधो दास बैरागी नूं पता लगा हुण नाम याद करी जाओ, पहला जानकी दास छड्डिया ते हुण राम जी दास भी छड्डता है। 1691 नूं नंदेड़ दे लागे जगह है पंचवटी। पंचवटी जगह ते एक डेरा है। उस डेरे का जिहड़ा मुखी है उसका नाम है औगणनाथ। यह है जोगी, यह है जोगी। इस जोगी की शरण विच आया। हाँ, इत्थे थोड़ा जिहा फर्क की पै गया कि जिहड़ा औगणनाथ का डेरा वड्डा है, इन्ने चेले रखे हुए है जिन्हां को मत्था टकाउंदा, ते जिहड़ा औगणनाथ है उहदे कोल रिद्धियां ते सिद्धियां हन। उन्हें एक तख्त बनाया होया है। वह फकीरां नूं अपने डेरे विच सददा, उन्हां दे नाल विचार करदा, उन्हां नूं तख्त ते बिठाउंदा ते अपनियां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल तख्त नूं उल्टा कर दिंदा। उन्हां दा जानी कि उन्हां दी बेइज्जती करदा, उन्हां दा मजाक उड़ाउंदा। ये औगणनाथ ये काम करदा। ये चलदियां चलदियां 1691 दे विच औगणनाथ कोल आ गया। समा अपनी चाल नाल चलदा गया। माधो दास बैरागी औगणनाथ दे कोल है, उहदे कोल है, रिद्धियां सिद्धियां सिख रिहा, सारा कुछ उहदी सेवा कर रिहा। समा चलदियां चलदियां पहुंच गया 1705 का समा। इत्थे मैं थोड़ी जी बेनती करना चाहांगा। 1705 तो पहला थोड़ा जिहा जिक्र कर दईए। आनंदपुर साहिब किला गुरु गोबिंद सिंह नूं छड्डना पिया। आनंदपुर किले तो बाद सरसा नदी ते जंग हुई है। सरसा नदी तो बाद अगे मलकपुर रंगड़ा दे विच भाई बचित्र सिंह जी जख्मी हुए है। उस तो बाद अगे चलदी है चमकौर साहिब दा साका हो गया। चमकौर साहिब के साके के बारे दो को मैं आप जी ना यार अल्लाह जोगी खां दे शेर लेने चाहांगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अज जदों चमकौर की गली में उन्होंने उतारा होया ना, शाम का टाइम है, रहरास साहब का टाइम हो चुका, ते महाराज वास्ते सिंघां ने एक वखरा सिंघासन उत्थे तैयार कर दिता। वखरा सिंघासन तैयार करता। बैठण वाला सिंघासन हुण की सीगा, जो उन्होंने विचारियां दे कपड़े सीगे, घोड़ियां दीयां काठियां दे थल्लों कपड़े सीगे, वो उन्होंने उतार के उतों उतार के ते महाराज वास्ते एक वखरा जिहा गधेला बनाता, जिन्हों अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश विछाके, जी पोश घोड़ियां दियां काठियां दे थल्ले उन्हां दी पिठ दे विचकार रखिया जाण वाला कपड़ा, तां जो घोड़े दी लक्कड़ दी काठी दे नाल ओहदी पिठ ना छिल्ली जाए, ओहदे थल्ले विछाया जांदा गधेला जिहा। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाके, कुछ देने लगे पहरा तलवार उठाके, सतगुर भी शबास हुए खेमे में जाके, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुका के, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु है मुंह से निकलता, तू ही तू तू ही तू तू ही तू है मुंह से। 10 लाख की फौज होवे ते रब चेते आ जाओ। बई साडे घर ते शाम नूं प्राहुणा आ जाए ते रहराज साहब भुल जाने आपां, इदां ही हुंदी ना। ते माफ करना हुण मेरी गल दा गुस्सा ना करो जी, गल कहण लगा। जे तुहाडे घर विच कोई प्राहुणा आया शाम नूं रहरास भुल गए आ कि वो प्राहुणा नहीं आ, वो काल दा रूप बन के आया तुहाडे घर। माफ कर जे तुसीं उहनूं लैके नाल बहानी पढ़दे पए हो भी आ जा बई बाकी गल्लां बाद च करदे आ, पहलां शाम दा समां साਂਭ लईए, ते फिर तुहाडे वर्गा भी महाराज कहंदे इस दुनिया ते कोई नहीं। ठीक है जी। मेरी आदत है जे मैनूं शाम नूं 6 बजे इंडिया च फोन आ जाए, मैं कहना हुंदा जा मजदूर का फोन आ गया, भावां बहुत करीब रिश्तेदार ही क्यों ना होवे, क्योंकि उन्होंने पता होना चाहिए भी 6 बजे किसी को फोन नहीं करीदा। 6 बजे क्योंकि समा लहरा साहब का बाणी पढ़ने का समा, उन्होंने भी पता कि यह प्रचार है क्या इन्हें अपना समा नहीं खंजोना। हाँ कोई ऐसी औखी घड़ी आ जाए तो हो सकता अगे पिछे हो जाए, पर समा अपने वो तो पिछे नहीं हटना। मैं बेनती कर रहा कि
कि महाराज अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछा के, कुछ देने लगे पहरा तलवार उठा के, सतगुर भी शाबाश हुए खेमे में जाके, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुका के, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु है मुंह से निकलता, तू ही तू तू ही तू तू ही तू है मुंह से निकलता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों इस रूहे जमीन ते आए नहीं ना, ते महाराज की रब नाल गल हुई है, ते रब ने कहा थले जा के मैं नहीं जाना। महाराज फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जो गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी ठाड़ पे हो मैं जोर कर बचन कहां सिर, पंथ चलेंगे जब जगत में जब तुम करो सहाय। उत्थे फिर महाराज ने पूछा क्यों नहीं जाना? महाराज कहते चित न भयो हमरो आवन कै, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, जे हले धरती ते नहीं आए तावी सुरत परमात्मा दे चरणा दे विच, ते जे पौंटा साहिब दी धरती ते जाप साहब दा उचारण करते पे है, ते उस समय भी उन्हां दी सुरत दे विचों की निकल रहा, जलस तू ही थलस तू ही नदस तू ही नदस तू ही ब्रशस तू ही पतस तू ही 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 16,000 बार महाराज ने तू ही दा जिहड़ा सी धुन वो महाराज ने लगाई, जो साडे इतिहासकार लिखते। ये अकाल पुस्तक दे विच वर्णन है। महाराज कहते जलस तू ही, जे मैं जल विच देखदा रब उत्थे भी मैनू तू दिखाई दे रहा, जे मैं धरती ते वेखदा उत्थे भी, जे पत्तियां च देखदा उत्थे भी, जे नालियां च देखदा उत्थे भी, जे नहरां च देखदा उत्थे भी, जे मैं दरख्तां विच देखदा उत्थे भी, हर थां तो मैनू तू ही दिखाई देना। ते बाबा कबीर जी पता की कहंदे आ, कहंदे तू अंदरों उधर प्रगट होनी है जिदन अंदरों मैं मर गई। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा परका मिट गया जद देखूं तत तू उधर प्रगट होनी है जिधर मैं मिट गई, क्योंकि मैं जड़ी आ वो तू नूं मिटन नहीं दे रही, जिन्हों बाबा रविदास जी कहते जब हम होते मैं तेनू की जानता, कहते मेरे अंदर हूं बैठी हुई है, जबकि बाबा रविदास विच हौं नहीं है, वो एक आम सिख की जुत्ती विच पैर पा के उहदे हालात दस रहे हैं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस रूहे जमीन ते आउण तो पहला भी तू, रूहे जमीन ते आके भी तू, ते अज 10 लाख मुखलिया ने मुगल ने घेरा पाया ते महाराज उत्थे भी तू। ते जफरनामे दे बोल महाराज कहते हैं, जफरनामे दे बोल महाराज कहते इन्होंने 10 लाख हन गुरस नहीं की कारे कुनद चेहल नर। मेरे 40 कहते भुखे पाने शेर कहते की कर सकते सी, कहते गुरस नहीं की कारे कुनद चेहल नर की दैलक बरायत बरोबे खबर। 10 लाख कहते तेरा मुगलैया बिना कहते मैनू दसिया मेरे मगर आ गया। मैं बेनती करा गुरु गोबिंद सिंह जी इसलिए फिर औरंगजेब नूं लिखते हैं, ना ईमा परस्ती ना औज़ाए दीन ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकीन। महाराज कहते कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद, तेरे कहते जेड़े मुगल है ना ये वादा तोड़ के पैमा शिकन, पैमा मैंने वादा, शिकन मैंने तोड़ दिता कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद, मैं आते को तीरो तुफंग आमदंद। मेरे पिछे मैदान दे विच तीर ते बंदूखां लैके आ गए ते महाराज कहंदे औरंगजेब तू मैनू मजबूर कीता कि आ जरा किरपान दा मुठा हथ पाउण वास्ते, नहीं ते मेरा दिल नहीं सी करदा। महाराज कहंदे चूकार अज हमा हील ते दर गुजस्त हलाल अस्त गुरदन व शमशीरे। दस्त जदों पानी कहंदे सिर तो लंघ जावे ना ते फिर कहंदे किरपान दे मुठे नूं हथ पाउणा कहंदे जायज है। चूकार अज हमा हील ते दर गुजस्त हलाल अस्त गुरदन व शमशीरे, फिर शमशीर दे दस्त नूं मुठे नूं हथ पाउणा। ते महाराज कहंदे बालाचारगी दरमिया आमदंद, मैं मजबूर हो के कहंदे जंग दे मैदान विच 14 जंगां लड़ियां, मेरा दिल नहीं सी करदा। बालाचारगी दरमिया आमदंद, फिर महाराज कहंदे मैं भी बड़े तरीके नाल आया,
पर तदबीर तीरो तुफंग आमदन, तदबीर मैंने पूरे तरीके दे नाल, पूरी योजना दे नाल मैं जंगां लड़ियां कहंदे। और जिहड़ी जंग मुकतसर दी महाराज ने लड़ी है ना, उही जंग दा तरीका बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद फतेह विच, चलो आपां अगे चलीए। 1705 दे विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दमदमा साहिब की धरती तो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता करके शब्द संपूर्णता वरतिया, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय 30 रागां की बाणी सीगी और 5 गुरु साहिबाना की बाणी सीगी, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने सत्कारयोग पिता गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दमदमा साहिब की धरती से महाराज ने दर्ज करके, और 31वां राग जैजावंती राग दर्ज करके इनू 31 रागां का मुजस्मा और 6 गुरु साहिबाना का जिहड़ा सीगा। बाकी भगत साहिबान तो उस समय सीगे 15 भगत ते 11 भट्ट ये ऑलरेडी सीगे, लेकिन 6वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की बाणी महाराज ने दमदमा साहिब की धरती पे। और तुहानू पता होना चाहिए दमदमा शब्द का पता मतलब की है, जिथे जाके साह लिया, जिथे भी दमदमा बनिया ना उहदी हिस्टरी दे विच इहो ही है। हाँ, एक होर तुहानू दस्सिया, चलो गल आ गई सामने, जिथे शीश गंज बनिया ते एक शहीद गंज है, वखरे वखरे है। गंज का अखरी अर्थ है खजाना। शीश गंज उत्थे बनिया जिथे गुरु ने शीश दिता, शहीद गंज उत्थे बनिया जिथे गुरु दे सिख ने सिर दिता। दरबार साहब जानते हो बाबा दीप सिंह का उत्थे की लिखिया होया, शहीद गंज। निक्कियां निक्कियां गल्लां पर सानू समझनियां चाहिदियां। उत्थे शहीद गंज लिखिया होया। दिल्ली जाते हो शीश गंज है, आनंदपुर साहब जाते हो शीश गंज है। आनंद दिल्ली तो चलदियां जिथे भाई जैता जी गुरु साहब का शीश लैके रुकिया, उत्थे सारे शीश गंज बने हुए हैं, उत्थे सारे शीश गंज बने हैं। खैर मैं जी बेनती कर लगा सीगा, 1705 दे विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दमदमा सब की धरती तो दक्षिण वाल नूं चलदे है। दक्षिण वाल नूं चलदियां चलदियां राजस्थान चों हुंदियां महाराज एक ना दादू की समाध दे कोल पहुंचदे। दादू का जन्म 1543 में होया ते 1606 में एक चढ़ाई कर गया। दादू की समाज ते जिहड़ा उहदी गद्दी ते बैठा उहदा नाम है जैतराम। ते उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी समाज के कोलों लंघण लगे ना, ते महाराज ने की कीता, अपना तीर पत्थे चों कढ़िया ते दादू की समाज नूं नीवा करता, यानी कि एक किस्म का मत्था टकाता। ते नाल सिख सीगे ते सिंघां ने गुरु साहब नूं घोड़े तो ला लिया, कहंदे उतरिया, कहंदे आजा, कहंदे थल्ले, कहंदे सानू ते रोज पढ़ा रिहा, कौ बतान को पूजत है बस, को मिलतान को पूजत धायो। जदों आ श्लोक बोलिया ना, सवैया बोलिया ना सिंघां ने, पहला ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे मेरे गले ना आके लग जाओ। मैं पुत्र देखना चाहता सीगा, वो टीचर अपने बच्चों का इम्तिहान लेना चाहता, जिन्होंने मैं रोज पढ़ा रहा, वो बच्चे जेड़े आ किन्ने को इंटैलीजेंट होए है। उन्होंने कहा गोबिंद सिंह आजा धरती तो आजा, धरती ते घोड़े तो उतरिया, घोड़े तो उतरिया महाराज। महाराज नूं उन्होंने सजा लाई है। मैं एक बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह का सिर जे चुकिया ते अज तक सिर्फ तिन्हां दे अगे चुकिया। एक चुकिया गुरु तेग बहादुर के सामने अपने प्यो सामने, दूजा चुकिया खालसे के सामने, ते तीजा चुकिया धन धन गुरु। जदों आखिरी उन्होंने कह के गए है, आज्ञा पई तवे चलायो सब सिखन को गुरु मानियो, गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुरा की, जो प्रभ को मिल वो चहे। खोज शब्द में शब्द दे के तिन्ना दे अगे गुरु का सिर चुकिया, तीजे अगे नहीं चुकिया। तुसी इतिहास पढ़ के देख लो। और गुरु नूं सजा भी खालसा ने 2 बारी लाई है। एक बारी सजा लाई सी चमकौर की गढ़ी च हुक्म किया जानी कि तू चमकौर की गढ़ी छड़ जा, तेरे वर्गा नहीं हो मुड़के पैदा होना, साडे वर्गे कई तू मुड़के पैदा कर लवेगा। गुरु साहब जी ना दादू की समाध जो गए है, उत्थे सीगा जैतराम। जैतराम के नाल महाराज की विचार हुई है। ये विचार करके मैं संपत्ता वाल आ जावांगा।
जैत राम नूं पुछया कहंदे तू दादू दा सानू कोई सिद्धांत सुना। बड़े ध्यान नाल सुनियो। ते दादू ने उन्हें सिद्धांत सुनाया, दादू दावा दूर कर, कल का लीजे भाए, जे को मारे ईंट ढीम, सिर पर लीजे बिठाए। दादू कहंदा जैत राम दादू दा सिद्धांत बड़ा वधिया जी, तुहाडे वांगू असीं किरपानां ते तीर कमान नहीं पाने। असीं ते जे कोई सानू कहंदे पत्थर मारदा माड़ी गल करदा, असीं कहंदे कोई गल नहीं, जे पत्थर भी सानू मार दवे ना असीं ओहदा पत्थर चक के सिर ते रख लैंदे आ। साडे अंदर इन्नी निमरता। उन्हां नूं दादू पंथी कहंदे आ, कहंदे इन्नी निमरता। गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे कमाल दी गल है, आह कादी निमरता तैनूं मैं दसदा निमरता। इत्थे तां अवे आवाज आ रही है, फरीदा जोते मारन मुकियां, तिना ना मारे घुम, आपनड़े घर जाइए पैर तिना दे, जे सानू कोई मुक्का मारे असीं उहदे पैर चुम लैंदे आ। इह निमरता। अगे चलिए, इत्थे ते गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्तियां तवियां ते बिठा दिता, ते तत्तियां तवियां ते महाराज बैठ के भी कह रहे उलाहनो मैं काहू ना दियो, मन मीत तुहारो कियो। आ देखो साडी निमरता, तत्ती तवी ते। हां एक गल हुण सुन दादू, दादू पंथी ते जैत राम, असीं ये सारी उम्र काम नहीं करते। इन्नी हुण ये साडी भी निमरता की कोई हद है। कहते निमरता की हद की है। ते फिर दादू दावा रख कर, वो कहंदा दूर कर, इत्थे रख कर। जे किसी ने तुहाडा बिगाड़िया ना ते असीं फिर वो अपने अंदर रखदे हैं। हुण अपने दरबार साहब से अटैक हो गया तो कोई छड्ड दिओ, किदां हो गया, किदां हो सकता, हाउ इट कुड बी पॉसीबल यार। मैं जी दादू दावा रख कर, कल का लीजे भाओ, जे को मारे ईंट ढीम, पत्थर दीजे रसाए। आई में ओदा पत्थर ना कहते जवाब देने। इन्नी भी निमरता नहीं हैगी भी सारा कुछ ही खत्म हो जावे। उत्थे फिर जैत राम ने कहा, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तुसी अज दे जेड़े समय दे तुसी अवतार हो, तुसी अज दे समय दे परमात्मा दे वल्लों भेजे हुए पुरुष हो। चलो उन्होंने विचार वटांदरा होईयां, जैत राम मन गया ते कहंदा पर एक मेरी गल सुनियो, तुसी पंचवटी ना जायो। आखे क्यों ना जायो, उथे माधो दास बैरागी रहिंदा। अच्छा जी वो की करदा, वो माधो दास बैरागी घोड़े दियां ते सिरियां, उन्हें एक तख्त लाया होया, जिहड़ा तख्त ते बहिंदा उन्होंने उल्टा कर दिंदा। महाराज कहंदे हुण मैनूं चाहीदा ही ओह है जिहड़ा तख्त उल्टा करन वाला, चाहीदा ही मैनूं हुण ओह है जिहड़ा तख्त उल्टा करन वाला। कल नूं आपां हुण उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी दा माधो दास बैरागी नाल मेल, उहदा पंजाब नूं तोड़ना, माधोदास बैरागी दा। उस तो बाद उन्हें जो कुछ पंजाब आके कीता वो सारियां आपां बेनतियां कल दे दीवान विच लवांगे। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं सतगुर दा पाया सहज सेती, मन बदियां बधाइयां।